Hi guys, welcome back to my channel. This is Advani and today I'm doing yet another video on my lockup review thing I'm doing, and today is episode number 9, and today we got coffee and my dog, which you cannot see but she's right here. So let's get started. Now before I get into this video guys, this is just my personal opinion. मुझ पे मत चढ़ो. Any fandom, I'm not hurting you. With that being said, let's get started. तो शिवांगी डिड से टू श्रेया कि हमने क्या नाम है यार इस बंदे, शिल्पा को बोला है कि यू नो टू सेव यू इंस्टेड ऑफ सुनीता बिकॉज शी डजंट वांट टू बी इन द शो, राइट. तो उसने बोला टू श्रेया, बट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फ्रेंडशिप, मेरे को समझ नहीं आ रही, बट ओके आई एम ऑल गुड विद इट. या सो राम जी ने बोला कि मेरा मील तो वैसे ही आएगा बिकॉज यू नो ही हैज़ हिज मेडिकल रीजंस, तो उनको लग रहा है कि लॉकअप विल सेंड हिज फूड एनी हाउ. एंड अब खाने पे जो ये डिबेट होगी बिकॉज दे जस्ट हैव 88,000, तो 88,000 में दे नीड टू फिल 15 स्टमक्स. दैट्स टू लो. सो आकांक्षा चौधरी ने सही कहा कि यू नो let's make teams and like साथ बैठ के you can share the meal. Now Shreya was like, no, I want my individual meal. I want my own meal. So I don't know where this is going. आकांक्षा चमोला ने सही कहा टू श्रेया कि हम सेव इसलिए हो रहे हैं बिकॉज हम लोगों ने यू नो अलायंसेस बनाए, हमने बात करी है लोगों से. इंस्टेड यू आर लिटरली फाइटिंग विद एनी पर्सन यू मीट and that will get you unsafe, and that's exactly what's happening. On the second week also she is unsafe again. So श्रेया ने कितनी बदतमीजी की तरह माधुरी जी से बोला, वाई आर यू शेयरिंग, वो तुम्हें सेव भी नहीं कर रहे, देन यू ऑल्सो वांना फीड योर स्टमक. लाइक गर्ल, you have 88,000 now, there's nothing that can be done with it, right? So you need to compromise for everybody else. You just can't keep thinking about yourself in this sort of a position. And I think चौधरी, चमोला, ये सबके बारे में सोच रहे हैं, पैम भी सबके बारे में सोच रही है. तो आई थिंक यू नो दैट मेक्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. आकांक्षा चौधरी ने मस्त श्रेया को बोला, तो उनकी मम्मी नहीं है दैट यू विल डिसाइड फॉर हर. लिटरली शी इज लाइक डिसाइडिंग फॉर हर. एक्सक्यूज मी, माधुरी जी इज वे ओल्डर देन यू, as you say, you know, like auntie, I'll tell you something. She's way older than you and she knows how to make her decision. She has fucking businesses. So please stop Shreya, please fucking stop. I love you, Sufi. Sufi ने पता है क्या? I'm trolling. I'm gonna be here till like 3. I love him, bro. Love him. तो आकांक्षा चौधरी श्रेया को भी बताती है कि why I was pitching for you between सुनीता and श्रेया, because सुनीता जी ने खुद से बोला था that she wants to leave the show and I would have chosen you, but शिल्पा शिंदे जी ने choose किया for सुनीता to stay. Why? Because she wanted her to stay in the game. So सुनीता जी भी कह रही थी बाहर कि इसको बुलाया ही गया है पंगे लेने के लिए मुझसे. So मैंने जब even इसको बोला है to not save me, she's still saving me because she wants to borrow from me. And I agree with that. Shilpa Shinde is here for Lado. So of course she will do anything for them to fight, right? So you guys, जब आकांक्षा एक्सप्लेन कर रही थी टू चमोले कि I'm not चूतिया, I'm not the C word, you know, like and all of that, कि मुझे ये बच्चा बुला रही हैं. मैंने तो उस टाइम सुनीता का नाम इसीलिए लिया बिकॉज ऑफ मुझे तो कोई पॉइंट ही नहीं समझ आता है इनकी बातों का, ठीक है. फिर वो बोलती है चमोले कि यू डिड द राइट थिंग बिकॉज पैसे भी बचे एंड श्रेया लाइक they're sort of enemies, so she is unsafe now. So it worked both in their favor. I don't know guys, I don't know क्या चल रहा है, ये क्या बातें चल रही हैं. What's the point of discussing all of this now when it's done? I didn't understand one thing. श्रेया शिल्पा के साथ बैठी हुई है speaking about आकांक्षा when Shilpa didn't save you as well. तो what is Shreya playing at? क्योंकि शिल्पा के पास तो था ऑप्शन to save you instead of Sunita, but she chose Sunita over you, my girl. So why are you sitting with her? You're like, babe, she didn't fight for me, she fought for Laila के लड़ना भी चाहिए. He's contributing so much to the show. I fucking agree with Chaudhary
उसको बचाना चाहिए था लैला को. शी इज गिविंग वे मोर एंड ऑडियंस इज लाइकिंग. ऑडियंस उसको पसंद, मेरी इंग्लिश की लगी पड़ी है गाइस, सॉरी, बट ऑडियंस लैला को ज्यादा पसंद कर रही है देन श्रेया. सो ऑफ कोर्स चौधरी को सेव लैला को ही करना चाहिए था ना. 100% एग्री विद दैट. बट बिकॉज शिल्पा शिंदे ने ये करा तो हमारी लैला फिर से चली गई उधर रिस्क पे एंड सुनीता बच गई एंड शी डिडंट इवन वांट टू बी सेव. सो व्हाट्स द पॉइंट. सो आकांक्षा और श्रेया की लड़ाई होने लग गई है अबाउट द फूड थिंग एंड आई थिंक ये स्नैक्स टाइम है. सो इन लोगों को मतलब सुनीता जी और राम जी के लिए तो आती है चाय एंड कॉफ़ी. आई डोंट नो, हमें ये पहली बार दिख रहा है राइट. तो उसने वो ऑर्डर किया एंड उसने बोला नो स्नैक्स फॉर एनीबडी. हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था. आकांक्षा सेइंग टू श्रेया कि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कल, यू नो, दैट वी विल नॉट हैव स्नैक्स बिकॉज 4 दिन हमें 88,000 पे चलना है. एंड देन श्रेया इज लाइक आई विल नॉट सर्वाइव, आई कैन सर्वाइव. तुम्हें सोचना चाहिए था बिफोर स्पेंडिंग ऑल दिस मनी. मतलब श्रेया ना ऐसी ऐसी चीज़ों पे इतने पर्सनल हो जाती है, पर्सनल अपना व्यंजन निकालती है ओवर फूड, ओवर स्नैक्स. लाइक दिस वॉज नॉट द कॉन्वर्सेशन टू पुट आउट कि तुमने उधर नॉमिनेशंस में क्या किया. really unnecessary and it's like a triggering thing, you know, you're triggering somebody to not do that, right? एंड श्रेया को ये पॉइंट यहाँ क्यों निकालना था, इट्स जस्ट बियॉन्ड मी. तुम्हें ये बोलना चाहिए था कि भाई मेरे स्नैक्स ऑर्डर कर दो, आई एम यू नो लाइक ऑल ऑफ दिस. बट शी स्टार्टेड ऑफ विद कि तुम्हें सोचना चाहिए था ना अंदर, तुम्हें सोचना चाहिए था ना अंदर. व्हाट इज दिस ब्रो, व्हाई आर यू ट्रिगरिंग, व्हाट्स अप विद यू. 100% एग्रीड विद सूफी. सूफी भी श्रेया को बोल रहा है दैट यू आर नॉट मेकिंग एनी सेंस. तुम्हारा रैशनल पन ही मुझे समझ नहीं आ रहा. बिकॉज ईदर वे पैसे जाते राइट. अगर वो श्रेया को सेव करते नहीं करते पैसे तो तब भी जा रहे थे फॉर सेविंग 6 fucking people, राइट. तो आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर व्हाट स्टूपिड पॉइंट श्रेया इज मेकिंग हियर. बिकॉज देखो भाई, सेव तो करना ही था, पैसे तो जाने ही थे एंड दिस वुड हैव बीन अराउंड दिस अमाउंट ओनली. ऐसा कुछ नहीं था कि 5,000 10,000 ज़्यादा हो जाते तो दे कुड हैव ईटन मोर. ऐसा कुछ भी नहीं होता अकॉर्डिंग टू मी. सो देन आउट ऑफ द ब्लू श्रेया बोलती है दैट आई एम फीलिंग अनवेल. दिस इज नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है. अब इसकी पहले बढ़ चुकी है ये सूफी और आकांक्षा के साथ. उसके बाद शी इज सेइंग यू नो दैट शी इज अनवेल तो प्लीज ऑर्डर फॉर मी. एंड वो समझा रही होती है कि वाई इज राम एंड सुनीता जी ईटिंग एंड वी कैन नॉट ईट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेल यू उनकी दवाइयाँ हैं. एंड देन वो बोलती है मेरी भी तो दवाई है, मैं भी दिखाती हूँ, मैं पूछूँ. सूफी love it. Clocked her. Like she always says clocked her. I love Sufi for doing this because she is so out of point and genuinely उसकी फट जाती है जब कोई उसके पास actually आता है ना, तो she gets फटोड and but she loves instigating, so that's her game I suppose, that she gets scared and then she cowers away. So I love Sufi. वो कह रहा है तू मुफ्त पे लगी हुई थी, तू जीरो पे थी, लल्लू. आई लव इट. एक्चुअली ही हैज अ पॉइंट, यू नो. किसी को भी सेव करते पैसे तो जाने ही थे. तो आई डोंट अंडरस्टैंड श्रेया कहाँ से ये अपनी थ्योरियाँ लाती है. हर माइंड जस्ट वर्क्स वियर्ड ब्रो. सो आकांक्षा ने थप किया और उसने कर दिया ऑर्डर. बिकॉज लिटरली अगर ये बात पहले ही हो चुकी है, सो वाई आर पीपल लाइक स्टेइंग देयर फाइटिंग ओवर ऑल ऑफ दिस, डिस्कसिंग फॉर व्हाट. आई एग्री विद वॉट शी डिड, बट जैसे उसने किया विदाउट टॉकिंग एंड पूरे डिसीजन मार दिया. तो राम जी ऐसे फटफट आए, हाउ कैन यू डिसाइड फॉर एवरीबडी, हाउ कैन यू डिसाइड फॉर एवरीबडी, हाउ कैन यू डिसाइड फॉर शिवांगी. लाइक आकांक्षा एंड आई एम लाइक ब्रो इट्स नॉट अ बिग डील, चिल करो थोड़ा भाई. एंड माधुरी जी वहाँ से वकील बन के आई. वी आर फाइटिंग फॉर 300, वी आर फाइटिंग फॉर 300. बाबा जब तुम लास्ट डे तुम्हारे पास 0 रुपये होगा ना, फिर खाते रहना तुम वो अपना आलू वाली सब्जियां. शिल्पा वॉज फाइटिंग विद आकांक्षा कि यू नो जब तुम्हारे पास टाइम था तब तो तुमने पैसे नहीं बचाया, अब तो तुम क्यों बचाना चाह रही हो, अब क्यों बचाना चाह रही हो. Bro, these people are too annoying for me. इन लोग का क्या पॉइंट है, what is this point? I don't understand. I really don't understand. जब ये स्नैक्स वाली डिस्कशन पहले ही हो चुकी है, why are people fighting now about it? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे इनफ नहीं है. What can you do about it? ये अगर मान के चलो ये सिर्फ कम वाले अमाउंट्स को बचाते और अपनी प्रायोरिटीज भी छोड़ देते, ठीक है, उनकी प्रायोरिटी भी उनके पास नहीं आती, उनके पास पैसे भी कम हो जाते. What was the game?
तो what Akanksha Chaudhary did there ना and saved her priorities, I 100% एग्रीड, वो करना भी चाहिए था भाई, क्योंकि पैसे तो वैसे भी जा रहे थे। तो 100% एग्रीड। कोई शिवांगी से तो नहीं बोल रहा है ये दैट शी ऑल्सो सेव्ड हर्षद एंड उसमें भी पैसे चले गए। नोबडी सेइंग टू पैम व्हाई इज एवरीबडी क्वेश्चनिंग आकांक्षा चौधरी? आई डोंट गेट इट। जो राम जी ने बोला ना कि जब डिस्कशन हो रहा है तब तुम यूं 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 कर रहे हो, दैट वाज रॉन्ग। even though it's decided, that was wrong, and somewhere I agree with that, but again अब तो हो गया अब क्या करोगे you know? And श्रेया जैसे बोल रही है I'm on very heavy medications, I'm on 4 medications, and आकांक्षा चमोला बोल रही है उसे कि bro just relax, तू प्रॉपर मील खा रही हो। वो कह रही है मैं वो भी खाऊंगी पर मैं ये भी खाना चाहती हूँ। तो if this is the amount they have and if they can, सही बोल रही है वैसे चौधरी, अगर सब लोग रिबेल करने लग गए एंड सब लोग स्नैक्स मांगने लग गए तो तुम अपना पेट तो कभी मत भरना। दे विल बी लिटरली नो मील्स एट द एंड ऑफ द डे एंड दैट्स एग्रीड। ये बहुत अब वो हो गया मैथमेटिकल कि यू नीड टू रियली रियली लाइक 8,000 में तुम्हारा खाना आना चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, बिकॉज इट्स सुपर सुपर फक्ड अप नाउ व्हाट आई फील। सो राम जी ने अपना पॉइंट आकांक्षा को ज़रूर बताया कि यू नो व्हाट यू डिड वाज वेरी रॉन्ग, कि हम जब डिस्कस कर रहे हैं तुम वो कैसे कर सकते हो, एंड हाफ ऑफ द मेजॉरिटी, जो तुम मेजॉरिटी बोल रहे हो उसमें हाफ से ज़्यादा बंदे तुम्हें गलत बोल रहे हैं कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मेरे को नहीं समझ आया पॉइंट। मैन दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट थ्रू, इतना बवाल बिकॉज श्रेया वांटेड समथिंग फॉर हर मेडिकेशंस और नॉट, आई डोंट नो, बट श्रेया को पहले बोलना चाहिए था। वाई डिड शी कम एट द टाइम ऑफ द ऑर्डर? मतलब तुम्हें पता था इस टाइम वो तुम्हें वो मांग लेते हैं, कैंटीन खुल जाती है, तो तुम्हें उससे पहले सबके साथ डिस्कस करना चाहिए था। व्हेन एवरीबडी वाज सिटिंग तुम्हें तब बोलना चाहिए था दैट आज मैं स्नैक्स खाऊंगी, बट अगेन शी इज शिल्पा शिंदे सूफी को जाके बताती है कि यू नो अब अगर किसी को कुछ चाहिए वो तो तुम्हें देना पड़ेगा ना। एंड ही वॉज राइट कि अगर हम लोगों ने पैसे पूरा खत्म कर दिया, तुम्हें वो अबला वाला वो आलू मटर पता नहीं क्या देते थे वो, दैट यू विल गेट फॉर 3 times a day, तो आर यू ओके विद दैट और गिविंग समबडी स्नैक्स? आई वुड चूज गिविंग, यू नो लाइक तुम थोड़ा दिमाग तो लगाओ इस चीज़ में कि दैट यू कैन नॉट गिव एवरीबडी द स्नैक्स। मुझे तो लगता है इफ सुनीता जी और राम की नेसेसिटी नहीं होती बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, उनको भी नहीं मिलना चाहिए था, बट बिकॉज दे हैव दिस मेडिसिन थिंग उनको करना पड़ता है। अगर वो भी नहीं होता ना, दे वुड हैव नॉट गिवन स्नैक्स टू एनीबडी एंड दैट वुड हैव बीन अ फाइन चॉइस। बट ये लड़ाई आई हैव रियली नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन एंड इट्स गोइंग वे आउट ऑफ प्रपोर्शन। आई थिंक इतना तो सबके अंदर अक्ल होनी चाहिए कि इफ यू आर नॉट ओके विद दैट सूप थिंग 3 times a day, तो यू नीड टू एडजस्ट एंड यू नीड नॉट टू हैव स्नैक्स। आई लव्ड हाउ सूफी सेड दैट कि मतलब एक बंदी 3 लोगों पे कुत्तों की तरह चिल्ला रही है, 4 लोगों पे कुत्तों की तरह चिल्ला रही है, हाउ डू यू थिंक दैट सिक? दैट इज नॉट हाउ अ ह्यूमन बॉडी वर्क्स। आई फ्रिकिंग एग्री विद सूफी बिकॉज तुम जब बीमार होते हो तुम्हारी बॉडी में कम होता है ना, एंड लोगों को दिख जाता है यू आर लाइक फकिंग सिक राइट, तो पीपल विल देमसेल्व्स ऑर्डर फॉर यू। तुम इतना कुत्तों की तरह वहाँ चिल्ला रहे हो, यू आर नॉट सिक ब्रदर। एंड दैट आई एग्री विद सूफी व्हाट ही सेड, 110% एग्रीड। जब वो कॉफी आई और मतलब माधुरी जी खड़े होके मेरे को ये लॉजिक समझ नहीं आया, इसने ऐसे ऑर्डर कैसे कर दिया, योगेश बोलता ओके मत समझो भाई आई लव ये जो भी चल रहा है योगेश और आकांक्षा का, आई फ्रिकिंग लव इट सो मच। एक दूसरे के लिए स्टैंड भी ऐसे लेग रहे हैं कि मतलब सामने वाला बंदा क्या रिप्लाई करेगा शिवांगी ने जैसे श्रेया से पूछा ना आई यू सिक, लाइक जेन्युइनली उसने बहुत प्यारे टोन में पूछा था, बट श्रेया गॉट सो डिफेंसिव दैट फॉर फूड डू आई हैव टू प्रूव टू माई, लाइक डू हैव टू प्रूव टू यू दैट आई एम सिक फॉर फूड? एंड शी इज लाइक नो यू डोंट हैव टू प्रूव मी एनीथिंग, आई एम जस्ट आस्किंग यू। एंड आई फ्रिकिंग एग्री विद दैट कि श्रेया ऐसे ट्रिगर होती है ब्रो, ऐसे when people actually ask her are you sick, अगर वो तुमसे दूसरी तीसरी बार पूछ रही है, चौथी बार पूछ रही है, at least give a freaking answer. Why do you have to be like, do I have to give you an answer? Do I have to give you an answer? शिवांगी एंड श्रेया की जब बात हो रही थी, genuinely शिवांगी बहुत अच्छे से पूछ रही थी, you know, are you sick? Like, are you sick? But she got so defensive and she was like, मैं तो अपनी दवाइयाँ दिखा दूंगी, मैं अपनी दवाइयाँ दिखा दूंगी। बट मुझे लगता है अगर वो दवाइयों पे है एक्चुअली, which I won't say yes or no, okay? पहले भी तो वो स्नैक्स लेती होगी ना, तो they would have eventually ordered for her too. But
जब उसने पहले कभी स्नैक्स नहीं लिए तो वो आज क्यों ले रही है? सो इट रियली इट्स नॉट मेकिंग मच सेंस टू मी। या फिर आज उनके पास पैसे कम है तो दैट्स वाई उन्होंने स्नैक्स सबके लिए बंद कर दिया और पहले लेती थी श्रेया। गॉड नोज, गॉड नोज। सो श्रेया एंड शिवांगी का झगड़ा हो रहा था एंड राम जी ट्राई कर रहे थे टू लाइक रियली रिजॉल्व इट एंड वो बता रहे थे श्रेया को कि शिवांगी वॉज जेन्युइनली आस्किंग यू बिकॉज शी हैज हर ओन लिमिट्स, बिकॉज शी इज ट्राइंग टू डिफेंड यू इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, सो शी शुड नो दैट यू आर सिक, राइट? एंड श्रेया मतलब शिवांगी ने खुद बोला आई कैन ऑल्सो शो यू लॉट ऑफ मेडिसिन, उससे क्या हो जाता है? आई एम जेन्युइनली आस्किंग यू इफ यू आर सिक और नो, राइट? तो I think Shreya got really defensive and or like very offended by that line कि तुम मुझे इस चीज़ पे you should trust me on this, you should trust me. But genuinely Shivangi, what I personally saw as an audience, she was genuinely trying to be a good friend and was just genuinely concerned कि are you sick, are you? ऐसे पूछ रही थी वो. So I think it was very unnecessary, Shreya, very. I think now Shivangi understood कि she's really not her friend. I think शिवांगी को अब पता चल गया है. I really don't know though. And जब उससे पूछा गया that she's sick, so she's sick. Now I'm mentally sick. Now I'm mentally sick. So शिवांगी ने सही बोला कि you don't need food for that. 100% agree. तो उसने कहा ठीक है मुझे खाना मत दो, ठीक है मुझे खाना मत दो. What is this attitude? I don't understand. तो शिवांगी got extremely emotional कि like you have 1-2 people that really support you in this house, तुम उनको भी दूर कर दो. And she went like very emotional and very crying to Harshad कि Harshad how much time will you take, like I think he was in the washroom or something like that. So she really wanted to talk to him and I think ऐसे लॉकअप जैसे सिचुएशन में यू रियली नीड वन पर्सन टू अंडरस्टैंड यू इमोशनली एंड आई थिंक फॉर शिवांगी इट्स हर्षद एंड आई रियली लाइक दिस क्यूट एज डायनामिक. बट शिवांगी शुड अंडरस्टैंड कि श्रेया इज़ नॉट रियली हर फ्रेंड बिकॉज वो जैसे उससे बात करती है एंड लाइक श्रेया को लगता है कि शिवांगी पे कोई हक नहीं है टू आस्क हर इफ शी इज सिक और नो. तो वैसे फ्रेंड्स होते नहीं है, राइट? तो फ्रेंड्स कैन आस्क ईच अदर एनीथिंग. तो शिवांगी शुड रियली अंडरस्टैंड कि शी इज़ नॉट रियली हर फ्रेंड. राम जी जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे टू श्रेया दैट यू सिंगल हैंडेडली हैव टेकन ओवर द होल हाउस एंड you are so intelligent. Okay. I don't think so, but okay. तो जब हर्षद को शिवांगी बता रही थी कि like it was not really nice, I don't like all of this, and she was like tearing up and all of that and she was crying, she did not like कि वो फालतू में लड़ रही है. एंड मैंने तो it's not the right question to ask, that's how she spoke to me and everything like that. And जैसे हर्षद उठा ना and he went to the door, it felt like he really wanted to fight and Shivangi really did not want him to fight. And वो लोग डोर पे आए and वो प्रोमो वाला शॉट निकला जिसमें I think he was trying to open the door and Shivangi was like don't go. Harshad overreacts too much sometimes. मतलब he should have been there for Shivangi and she should have like वो बाद में भी बात कर सकता था श्रेया से. So बड़ा ओवर रिएक्शन, लाइक आई टोल्ड यू. मतलब हर्षद का एक साइड है विच इज़ एक्सट्रीमली एग्रेसिव जो बार बार आता है ऑन स्क्रीन एंड आई एम जस्ट सो कन्फ्यूज बिकॉज समटाइम्स आई फाइंड इन सुपर पुकी स्टाइल, then sometimes it's this sudden aggressiveness, this sudden overreaction, this sudden like it's confusing for me what exactly Harshad does. I'm so sorry I'm laughing at this, but वो गेट खोल के बोले चुड़ैल अपने आपको समझती क्या है. मतलब honestly Harshad, the stand you're taking, I am all up for it, but जो तुम इतना aggressively वो गेट खोल रहे हो, aggressively इतना you're coming when Shivangi is stopping you, वो नहीं करना चाहिए. except that I love your stand. ये चुड़ैल अपने को क्या समझती है. love it. तो श्रेया वहाँ पे बाहर बैठी है, मेरे बारे में बोल रहा है. उसको तो वो चाहिए था एक कन्फर्मेशन और फिर वो लड़ने आ जाती. बट हर्षद जैसे चिल्ला के बोल रहा था ये चुड़ैल को बोल रहा है अपना मुंह बंद रखे नेक्स्ट टाइम. आई 100% एग्री. जो मैं हर्षद कर रहा है ऑल फॉर इट. बट इतना एग्रेसिवली आना व्हेन लाइक शिवांगी इज टेलिंग यू लाइक आई केम टू यू एज अ फ्रेंड टू express how I'm feeling. This is not how I want you to react. Literally that's what she meant. But Harshad जैसे
मुझे समझ नहीं आता उसका कभी कभी ये दिस बिहेवियर, आई डोंट अंडरस्टैंड, डू यू गाइस अंडरस्टैंड? मुझे नहीं पता भाई, इट्स जस्ट टू ड्रामेटिक यू नो। सो शिवांगी राम उनको बोल रहे थे कि आफ्टर सम टाइम यू गो एंड स्पीक टू हर, राइट नाउ नो, राइट नाउ नो, बिकॉज हर्षद वॉन्टेड टू टेल टू श्रेया कि तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। आई थिंक दे वर रियली ट्राइंग टू अवॉइड अ कलेश, क्योंकि दे नो अगर हर्षद का मुंह खुला मुझे लगता है वो चुड़ैल से ज़्यादा बोलेगा उसको। सो आई थिंक दे वर रियली ट्राइंग टू स्टॉप, बिकॉज शिवांगी इज ऑल्सो हर्षद्स फ्रेंड राइट, तो शी डजंट वांट कि वो कुछ गलत बोले, तो आई थिंक दैट्स व्हाई शी वाज स्टॉपिंग हिम। बट अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड हर्षद आई थिंक बहुत इमोशनल हो गया था क्योंकि वो बोल रहे थे इस चूतिया ने क्या किया अपनी पूरी जिंदगी में, ला 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 ला। ठीक है, एंड श्रेया वहाँ पे बाहर बता रही है कि मेरे से ही तो गई रोते रोते, मेरे से बात कर रही थी, मैंने इसको मेडिकेशन दिखाई फिर ये चली गई, बट शी विल नॉट रिमेंबर हाउ शी स्पोक, शी डजंट रिमेंबर दैट, बट शी रिमेंबर्स कि हाँ वो रोते रोते गई थी और अब ये मेरे बारे में कर रहे होगे। ब्रदर, योर टंग, योर टोन इज जस्ट not cool, Shreya. So पैम, आकांक्षा, चमोले एंड शिवांगी उसको समझा रहे हैं कि जो तुम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, उसको गालियाँ दे रहे हो, इट्स नॉट ओके फॉर अ वुमेन। बट आई रियली थिंक शी डिड डिजर्व इट। आई एम सो सॉरी अगर कोई श्रेया कालरा का ये फैन देख रहा है, ब्रो आई एम नॉट लाइकिंग दिस गर्ल, आई हैव टोल्ड दिस बिफोर, आई डोंट लाइक दिस गर्ल। तो उसके अगेंस्ट जो भी हो रहा है, I think it's totally deserved. I'm sorry, but I like it. And it's not about girl or like woman or man. हर्षद जैसे उस पे मतलब ऑब्वियसली उसका जो टोन है, वो जो गालियाँ दे रहा है, उसको अरेज करके अगर वो एक्चुअली श्रेया से बात करने लग जाए, आई वुड लव इट। आई वुड लव somebody to show Shreya Kalra her place because she thinks she is it, but she is really not. श्रेया वहाँ पे बैठ के राम जी से पूछती है, जैसे राम जी बाहर आते हैं, वर दे टॉकिंग अबाउट मी, वर दे टॉकिंग अबाउट मी, एंड वो बताते हैं कि हर्षद गॉट एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव ओवर शिवांगी, विच आई एग्री वो था, बट इट्स लाइक आई टोल्ड यू टू ओवर ड्रामेटिक, बट आई डोंट नो। ठीक है, तो वाई डिड आई फील लाइक श्रेया वॉज हैप्पी अबाउट दिस, क्योंकि वो ऐसे लाइक थोड़ा वो स्माइल करना चाह रही थी, बट शी वॉज नॉट। Is it just me or did I feel that way? क्योंकि I thought she was really happy that they were fighting over me, you know. मुझे बंदी बिल्कुल नहीं पसंद guys, I'm sorry. शिवांगी did say to Harshad कि मतलब you know I just wanted to vent it out whatever I was feeling and all of that, and योगेश अंदर आता है, ठीक है, तो वो कहते हैं अभी, हर्षद बोलता है अभी नहीं भाई, तो योगेश बोलता है मैं वॉशरूम ले जाऊँ। उस बेचारी की ले लेते हैं यार सब। माधुरी जैसे बता रही थी माधुरी जी बाहर की, मतलब तुम्हारी फ्रेंडशिप को अच्छा हो जाए तो तुम फ्रेंडशिप करोगे अगेन, लाइक इट्स अ वकील ऑफ श्रेया, मतलब मेरे को तो लिटरली लॉयर ऑफ श्रेया होना चाहिए माधुरी जी का नाम, बिकॉज शी लिटरली क्यों एडवोकेट करती है उनके बारे में, गॉड ओनली नोज, बट या शी वाज लाइक हाँ इनकी फ्रेंडशिप अच्छी लग रही है तो ऐसे हर्षद आएगा। जैसे हर्षद शिवांगी को समझाता है ना कि जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू हर, stop thinking about her, stop even like looking at her because she's an instigator, so she will try and provoke you, so caring for her is basically insulting you. Oh my god Harshad, मतलब that line hit so well, क्योंकि genuinely इस गेम में अगर कोई श्रेया के बारे में कोई परवाह कर रहा है ना, तो it's basically just insulting yourself, because her tone, the way that she speaks to people that even care about her, it just shows that what kind of a person she is. मतलब शिवांगी is, I feel like she's the most sweetest person right in this game, तो वो किसी के पास जा रही है in a way to like genuinely take care of them, and उसके पास ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है ना, तो इवन मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा है शिवांगी के लिए, because I know she genuinely did care for Shreya, but what Harshad said, completely agree by it, कि तुम उसके बारे में परवाह करोगे, that's basically insulting yourself. I loved Akanksha ka pageant walk versus a real walk. I mean, it just shows, you know, a pretty girl can be a lucha girl. Love it. Love it. I think it just generally shows कि models हमेशा ऐसे नहीं चलती है, and they're not always in this, पता नहीं क्या लोग समझते हैं उनके बारे में. I love कि आकांक्षा एक दूसरी side दिखा रही है of models, which is much necessary. Love it. Love it. So they ordered the food and it cost 15,000, which is a lot of amount. भाई कैसे चलाने वाले हैं, like next 4 days is beyond me. But योगेश चाबी दे रहा था कि अब हम बात करके करेंगे, हमें तो चाबी, हमें तो
वो यार why do I get this feeling? नहीं तो छोटे छोटे बच्चे जिनको वो चाहिए होता है कि हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, वैसी वाली भाई मेरे को बड़े क्यूट है भाई ये। क्या पंजाबी बोलती है भाई पैम, वाओ लव्ड इट। तो योगेश, लैला एंड पैम बैठे थे और क्या मतलब मेरी, मैं घुलाटी हूँ ठीक है, और मुझे खुद पंजाबी बोलने नहीं आती जितना ये अच्छे से बोल रहे हैं। ये एक कर ये एक कर मेरे बिस्तरा आ गया। आई डोंट नो, मेरे को पंजाबी मेरे को बिल्कुल भी नहीं बोलनी आती ठीक है। तो आई लव्ड पैम की पंजाबी, लव इट भाई। मुझे पता नहीं था वो बंदी इतना अच्छी तरह पंजाबी बोलती है, लव इट लव इट। और लैला का जैसे उन्हें बर्थडे केक काटा था, सो क्यूट। एंड लैला का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू लैला बाय द वे। एंड इट वाज सो अडोरेबल ऑफ योगेश टू डू दिस, सो अडोरेबल भाई। तो इन्होंने योगेश बॉटल लेके आया कि आज तो बर्थडे, आज तो दारू पी ले, और वो कह रहा नहीं मेरे को घर जाना, मेरे को घर जाना, ऐसे ऐसे मुंह छुपा रहे हैं। क्या एक्टिंग करते हैं भाई, लव इट। ये जो योगेश, लैला, रियाज का चल रहा है ना भाईचारा कोडेड, लव इट लव इट। वो बंड होने की एक्टिंग कर रहे थे रियाज, योगेश एंड लैला। प्रॉपर ऐसे ऐसे चल रहे हैं वो भंडी एकदम, आज तो दारू पियेंगे, आज तो बदमाशी करेंगे। क्या हो रहा है ये? सो पैम एंड आकांक्षा चमोले साथ में बैठे थे कि हम तो वेकेशन पे हैं, हम तो ऐसे फोटो वोटो खींच रहे हैं, पता नहीं क्या ड्रामे चल रहे थे ठीक है। एंड फिर आज उनका एक टास्क है जिस पे लिखा था एक बोर्ड पे, डू नॉट टच। आई रियली डोंट नो व्हाट द टास्क इज राइट नाउ बिकॉज मैं भी देख रही हूँ, बट आई फील लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स वॉच नेक्स्ट। क्योंकि राम कपूर मतलब धीरज है, उसको ना ऐसे लाइक राम कपूर को टच किया, उसने कहा डू नॉट टच, डू नॉट टच। जैसे शिल्पा शिंदे शिवांगी को इनेक्ट कर रही थी वहाँ पे विद श्रेया की, यू नो ऐसे छुई हुई बनती है वो। एंड फिर वो यू नो लाइक तुम इतने छुई हुई हो तो तुम्हें शो में क्यों आए, तुम अगर यू नो तुम इतने हाँ हो तो तुम क्यों आए शो में। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे से तो वो बहुत बेटर है। एटलीस्ट शी डिड नॉट डू stuff that you did outside, which I don't even want to talk about anymore, like that sexual false harassment case. So don't get me started on you because Shivangi is way better than you, both of you. So लैला कितना शातिर है भाई। लैला, योगेश एंड आकांक्षा बैठे थे। लैला ने पैम के बारे में बोला कि जब हम कल केक काट रहे थे तो पैम आई नहीं कैमरास ये देखो देखो कैमरास, एंड उसने हग्गी करी ना टू लैला। तो वो कह रहा है अगर इसके पास मेरा सीक्रेट नहीं होता ना, बिकॉज लाइक ऑन द फर्स्ट डे आई इवन फॉरगॉट दिस कि लैला ने अपना सीक्रेट पैम को बताया था, तो बिकॉज ऑफ दिस लैला इतना अच्छा बना हुआ है पैम के साथ, वरना तो वो कब तक, वो तो बोल रहा है वो तो एक कैमरा ना आने दे इस बंदी। कितना शातिर है भाई लैला, क्रेजी शातिर। डिड नॉट नो कि इतना स्मार्ट है लैला, ब्रो लव इट। हाय राव, पैम, माधुरी और श्रेया अपना मेकअप कर रहे होंगे एंड देन वहाँ पे पता नहीं कुछ होगा, तो पैम स्टार्टेड स्क्रीमिंग, देन माधुरी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, देन श्रेया स्टार्टेड स्क्रीमिंग। भाई ये लोग इतने कुत्तों की तरह रोए, घास में लगा। एंड पैम वहाँ पे नीचे गिर गई कि ओ माय गॉड वो इतना बड़ा था। ब्रो पैम इज सो एंटरटेनिंग, लाइक जेन्युइन। ये लोग कुत्तों की तरह कीड़े की वजह से, चलो एक्चुअली आई हैव टू एग्री कि अगर मैं भी कोई कीड़ा देखती हूँ तो आई रिएक्ट लाइक दिस ओनली, तो आई एग्री। Then Ritesh came and you know like he started talking about that चूहा, तो वो एक्चुअली था नहीं चूहा। I thought वो actually था, but Pam was like मैंने देखा, why would I react like this? And Ram was like yeah I believe you. So Pam was like can we get pest control? And she was like पैसा। Ritesh was like पैसा तो मैं करवा दूंगा। But basically guys आज का task है कि they have this platform thing, okay, and it's all luck basis. तो इनका full luck का होगा, so whoever stands first on this little platform, they will get the opportunity to put their hand into this wall thing, and with this they might get a disadvantage, they might get an advantage, they might get the opportunity to do पता नहीं क्या था ठीक है, but if you have to see and wait, so it could be anything, it could be a disadvantage or advantage. And अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, ये मॉनिटर होगा फ्रॉम नेटफ्लिक्स टीम। जो भी आएगा, अगर नेटफ्लिक्स को वो कंटेस्टेंट अच्छा लगता है तो वो उसको एडवांटेज देगा, नहीं लगेगा तो डिसएडवांटेज। 110%। Pam was like sue them for doing this to me, sue them।
ठीक है बहन, ठीक है. British Embassy, if you're seeing this, my PR team, if you're seeing this, sue them, sue them. So first गई माधुरी जी, बिकॉज माधुरी जी वो स्टेडियम के आसपास ही घूम घूम रही थी, राइट. तो जैसे ही बजर बजा, शी स्टेप्ड ऑन एंड माधुरी जी वाज द फर्स्ट कंटेस्टेंट टू पुट हर हैंड इनटू दैट प्लेटफॉर्म थिंग, राइट. एंड उसमें आया द, आई थिंक दिस वाज एन एडवांटेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो उसमें लिखा था आपको खुद के अलावा किसी भी एक इनमेट को एक दिन के लिए फ्री प्रीमियम मील्स देने की पावर मिलती है. अपना फैसला जेलर के पहुंचने पर बताएगा. ऑफ कोर्स शी विल चूज श्रेया, ऑफ कोर्स 110%. सो नॉट अ सस्पेंस देयर. तो श्रेया पैम को एक हग्गी देती है एंड श्रेया इज लाइक, यू आर नॉट एन आंटी, यू आर सेक्सी वुमन, आई एम सो सॉरी फॉर सेइंग दैट. एंड आई एम लाइक, this is gonna be a pattern for you too now, to say sorry every time you do a mistake. Maybe you should think before speaking, Shreya. अभी श्रेया और माधुरी जी की बात हुई कि श्रेया को वो वाला खाना नहीं चाहिए, तो तुम कल क्यों लड़ रहे थे इतना खाने के लिए? क्या हो रहा है भाई? बट माधुरी जी को श्रेया ने बोला नहीं नहीं तुम लैला को दे दो, इट्स हिज बर्थडे. हाँ हाँ हाँ, सो गुड यू आर, सो गुड. सो रितेश जी जब आए एंड ही यू नो लाइक लैला को बोला कि तुमने आज तो नहाए होगे, तुम्हारा बर्थडे है. तो वो कहता नहीं नहीं वो कल नहाया, और ऐसे कर रहा था रितेश. बट देन रितेश वहाँ पे बैठ ही गया क्योंकि माधुरी जी वाज लाइक स्टैंडिंग और वो एक हग्गी दे रही थी लैला को कि यू नो शी गिव द प्रीमियम मील्स टू हिम. तो रितेश बैठ गया कि नहीं मैं ये पट्टा लगा लेता हूँ, मैं ही बैठ जाता हूँ, तुम कर लो. रितेश आई लव यू फॉर दिस. ही एटलीस्ट एडमिटेड कि उसका काम ही है टू because Lockup wanted to craze this up. So उन्होंने कहा बिकॉज लोग इतना अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर ही रहे हैं, तो हम माधुरी जी को बोलेंगे कि whoever stands on the platform next, and उसके बाद जो नेक्स्ट बंदा होगा वो डिसाइड करेगा कौन नेक्स्ट चढ़ेगा, कौन नेक्स्ट चढ़ेगा, कौन नेक्स्ट चढ़ेगा. एंड ऑफ कोर्स श्रेया वाज लाइक आई लव इट बिकॉज ऑफ कोर्स माधुरी जी तुम्हें ही चूज करेगी. एंड लॉकअप रियली प्रेफर श्रेया कालरा. Pam was like to Lala, तुम्हारे पास one wish है. What do you want for your birthday? That's so cute. Of course, Madhuri ji chose Shreya Kalra. How can she not? And she got the power. आपको एक power मिलती है. आप एक्सेस कार्ड एक्सक्लूसिवली यूज करके पूरे हफ्ते दूसरों के लिए फैसले लेंगे. इस पावर की डिटेल्स जेलर आपको समझाएगा. सो बेसिकली उसको ये जो ये मील्स जिससे ये ऑर्डर करते हैं, शी विल हैव दैट कार्ड एंड शी विल हैव द फाइनल डिसीजन टू ब्रिंग फूड. आई एम टेलिंग यू, लॉकअप लव श्रेया बिकॉज शी गिव्स द कंटेंट ऑफ कोर्स. सो जब रितेश आए एंड यू नो ही एक्सप्लेन्ड कि यू विल हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव दिस पावर कार्ड एंड तुम ही ऑर्डर करोगे आप, सो इट इज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो श्रेया बताती है कि कल आकांक्षा चौधरी ने जो मैंने उसे बोला कि आई हैव टू टेक मेडिकेशंस, आई नीड फूड एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसने नहीं किया, उसने ठक कर दिया एंड एवरीबडी टुक दैट डिसीजन, ऑल ऑफ दैट हैपेंड. एंड देन आकांक्षा भी बताती है कि यू नो किसी ने भी नहीं बोला, एवरीबडी वाज इन द मेजॉरिटी कि देयर विल बी नो फूड, राइट. बट शिवांगी देन सेड कि नहीं नहीं हम चाह रहे थे, हम बात कर रहे थे. देन ऑब्वियसली योगेश टुक अ स्टैंड फॉर आकांक्षा. नहीं लाइक नहीं नहीं तुमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, हम वहीं बैठे थे, किसी ने भी मुंह से नहीं बोला कि नहीं हम ऑर्डर करेंगे, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हो रहा था. विच आई एग्री डिस्कशन हो रहा था एंड आकांक्षा को इतनी रेकलेसली नहीं करना चाहिए था डिसीजन, दैट्स फॉर श्योर. बट आई फील लाइक श्रेया इज एन अपॉर्चुनिस्ट बोलते क्या बोलते हैं, बट वो नहीं था अपॉर्चुनिटी सीकर. सो आई थिंक शी टुक द अपॉर्चुनिटी एंड शी प्लेड एक्सट्रीमली वेल विद इट. एंड अब उसके पास ये पावर है बिकॉज लॉकअप इज लविंग हर बिकॉज शी इज गिविंग द कॉन्टेंट. सो दैट्स माई रिव्यू फॉर y'all. Shreya is like bad bitch is coming, make the way. I'm like, you are the only person that's calling herself a bad bitch. I don't know what's there to be proud about, but okay Shreya, okay. Sufi was right कि मतलब वो अब चाट रहे हैं उसकी बिकॉज श्रेया एंड उसका माधुरी का डिस्कशन चल रहा है टू मेक लैला ऑन देयर साइड एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. बट आई डोंट थिंक लैला विल डू दैट. लैला इज क्वाइट स्मार्ट, तो वो इनकी साइड तो नहीं जाएगा बिकॉज ही नोज कि हाउ टॉक्सिक दे आर. सो अब वो खाना ऑर्डर कर रहे हैं, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. व्हाट द फक श्रेया, यू आर द वन दैट वाज लिटरली कि ओ माई गॉड मेरे लिए खाना नहीं मंगवाया, मेरे लिए खाना नहीं बनाया, एंड नाउ शी इज टू सूफी लाइक से सॉरी टू मी देन आई ऑर्डर योर फूड.
And then Sufi says, you know, sorry. And she, do you mean the sorry? And Sufi कहता, I don't mean it. You told me to say it. I did. But then she was like, so then there's no food for you. Like, how brutal can you be, Shreya? Like, I am not liking her, bro. Her attitude, the way she is, no. Horrible. Horrible, Shreya. Guys, मेरे यहाँ पे आई थिंक कुछ तो हो रहा है. इफ यू हियर म्यूजिक, आई एम रियली सॉरी. बट श्रेया बोलती है योगेश को कि से श्रेया विल विन द शो. ओके, नो फूड फॉर यू. भाई ये जो एटीट्यूड है ना श्रेया का, ब्रो, हाउ कैन एन ऑडियंस लाइक हर? मेरे को नहीं समझ आएगा, ठीक है. आई डोंट लाइक हर. मेरे को नहीं समझ आ रही बंदी बिल्कुल भी. फॉर फूड शी इज टेलिंग पीपल टू से ऑल ऑफ दिस शिट. एटलीस्ट आकांक्षा डिड नॉट डू दैट. एंड वो आकांक्षा भी जैसी आई वो बोलती 4 प्लेट मोमो भैया, छोड़ो भैया. देन आकांक्षा वहाँ पे उछल उछल के बोल रही है, नहीं छोटू मेरी दवाई है, मेरी दवाई. ब्रो, एंड फिर भी श्रेया सेइंग कि से सॉरी, आई विल ऑर्डर इट फॉर यू. लाइक सच अ, मतलब हाउ कैन एन ऑडियंस बेस लाइक हर? लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड. See, I told you. Shreya is like, नहीं, I'll order 1 non-veg for Yogesh. एंड सूफी फिर बोलता तुम्हें अपनी ईगो मसाज चाहिए थी, तुमने इसलिए करा. और इसलिए आकांक्षा बोल रही थी इतनी जल्दी बिगड़ गई यार, कोई स्टैंड ही नहीं है यार. ऑफ कोर्स शी विल ब्रो. व्हाट इज दिस बकवास? फॉर फूड दे विल से ऑल दिस शिट फॉर यू. सो बैड यार. मतलब मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना इन दोनों के लिए, आकांक्षा चौधरी और सूफी के लिए. मतलब एक्सक्यूज मी, लाइक व्हाई विल दे से शिट टू यू? लाइक हॉरिबल. 100% आकांक्षा चौधरी ने जो बोला, बिकॉज राम कपूर जब आकांक्षा ने वो सेम चीज करी कल, ही डिड नॉट से शिट. मतलब ही सेड सो मच उस टाइम कि आकांक्षा यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग. एंड जैसी श्रेया ने किया, ही जस्ट यू आर सो रॉन्ग श्रेया, यू आर सो रॉन्ग. बस ये बोला राम कपूर ने. जस्ट एग्रीड जो श्रेया बोल रही है कि बिकॉज यू थिंक आई रिस्पेक्ट यू. आकांक्षा ने बोला, सॉरी, अब आई एम नॉट गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन द टू. या आकांक्षा ने बोला बिकॉज यू थिंक I respect you, I'll listen to you, and you won't say anything to Shreya because you know that she will not listen to you. So this is not fair, Ram. Sufi, I feel so bad for Sufi. Sufi जैसे समझा रहा है ना, because we have to massage your ego for fucking food. You called her inhumane, you called her evil because you have that tag. तुम कुछ भी बोलो and हम सुनेंगे, and we have to take care of that just for food. I felt so bad for Sufi. मतलब मेरे को इतना बुरा लगा ना Sufi के लिए. Shreya is just not somebody that I support, you guys. I am so against this woman. तुम मुझे बोलो मैं PR कर रही हूँ, BR कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, I do not like this woman. I will never like this woman. I hate this woman, bro. For like मुझे इतनी बुरी लग रही है ना ये बंदी. For fucking food you're gonna do this? It's so bad, so bad. जैसे सूफी ने उसको बुलाना डाल के क्यों इन fucking yes. Even if I was there ना, I would not be able to take care of it because बंदी खाने के लिए कर रही है भाई इतना. दैट वॉज अ फकिंग स्नैक. मून दाल वॉज अ स्नैक फॉर हर. वो किसी का लंच और या फिर वट एवर देयर ब्रेकफास्ट, लंच, वट एवर इट इज, शी इज टेकिंग दैट अवे. वाह श्रेया, फकिंग हॉरिबल ह्यूमन यू आर, ब्रो. एंड जेन्युइनली सूफी ने सही बोला कि यू प्रीच अबाउट ह्यूमननेस एंड व्हाट आर यू? यू आर नॉट इवन फकिंग ह्यूमन. 100% एग्रीड सूफी, 100. चौधरी ने क्या मस्त किया, उसने प्लेट उठाई और निकल लिया अपना. fucking beautiful चौधरी. एंड जब लैला की वो प्रीमियम प्लेट आई विद दैट फकिंग बो, इट वाज सो भाई सब उसको देख रहे हैं खाते हुए मटर पनीर पराठा. लाइक दे हैव नेवर हैड फूड. लाइक इट्स सो वियर्ड. सूफी ने बहुत सही बोला कि मतलब मैं खरात का खाना तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा. इफ शी विल गिव मी विद रिस्पेक्ट आई विल ईट इट, वरना तो मेरी भूखी मर जाए. इवन इफ आई वाज इन सूफी सिचुएशन आई वुड डू द सेम थिंग. लाइक मैं यहाँ पे किसी की लाइक वो भीख नहीं मांग रहा है फॉर फूड, राइट? 100% एग्री. मतलब श्रेया जैसे बिहेव करे ना, इट्स जस्ट लाइक रियली ईटिंग मी आउट. एंड उन्होंने एक एक्स्ट्रा प्लेट प्रीमियम की कर दी बिकॉज दे थॉट कि हमें ऑर्डर करना पड़ेगा ताकि वो मिस ना हो. बट वो वैसे भी आता लैला के लिए. तो श्रेया इज स्टूपिड, दैट्स व्हाट शी इज. तो दे ऑर्डर्ड दिस प्रीमियम प्लेट. अब वो बोल रहे हैं शिवांगी एंड हर्षद को जस्ट टू शेयर एंड हैव, विच इज. और शिल्पा जैसे चिल्लाई ना ऑन शिवांगी एंड हर्षद, खाना चिट्टा भाई. irritating you are, you woman, irritating. एंड इट वॉज बाय चांस की बात है कि आकांक्षा चौधरी को खाना मिला. आई डोंट थिंक अगर वो एक्स्ट्रा प्लेट आती प्रीमियम की उसको खाना मिलता भी नहीं. तो श्रेया, जैसे आकांक्षा चौधरी ने बोला कि यू नो विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. 100% एग्रीड. एंड श्रेया का प्लान नहीं चला. सो सॉरी श्रेया.
Why did I predict this already कि Shreya will choose Madhuri, अब ये एक दूसरे के साथ ही खेलते रहेंगे पूरा game, which I don't think will be possible because maybe Madhuri ji will get a false or a disadvantage. तो Shreya का plan might backfire because अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो this can happen and her plan can go to hell. Love it, lock up. I love you so much. So मतलब that means कि माधुरी जी cannot have it again. तो अगर एक बंदा एक ही बार गया है तो that can never happen again. Love it, love this game. Sufi was like, it's not an Oscar speech. Come on, get on. Love it, Sufi. And Shreya chose Shilpa Shinde. Of course, वो वही choose करती है अपने 3 तक आया लो. Shreya was like, I'm winning in life, bro. You're not really. And Sufi and Akanksha वहाँ पे हंस रहे. Even I loved it then. Like, what are you winning it? Shilpa Shinde got better luck next time. Please select the next inmate to scan their hand. Fucking karma. So we get the Oscar speech gone to waste. Sophie, I love you. So Riaz was the one that Shilpa Shinde shows क्योंकि उसका रेड था, तो उसने पिच करा और उसका हो गया पिच, and Riaz went and he got. आपको एक पावर मिलती है, आप एक इनमेट का स्टेटस सिक्योर से एट रिस्क कर सकते हैं, और ऐसे करने पर खर्चा पानी में 50,000 ऐड हो जाएंगे. आपके फैसले, अपना फैसला जेलर को बताए जब वो पहुंचे. Oh my god, I really hope he chooses Shreya because what she did, I think she really deserves it, and 50,000 का ऐड हो जाएगा तो that would be. So guys, मेरे घर में लाइट चली गई. I'm so sorry. तो मैं मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, but I want to talk about the promo because wow, was it fucking crazy, right? Because wow, damn, they're coming to like physical altercation with each other, which is crazy. And I'm super excited to see कि ये क्या लड़ाई हुई, that they got so physical with each other, Akanksha and Shreya. And of course Shreya, you know, was again provoking her कि like, you know, she didn't give her food and all of that. So super excited, and Yogesh bhi lad raha hota hai with Shilpa Shinde too. So I'm extremely excited, y'all. But thank you so much for watching. I hope to see you guys tomorrow for the next episode. Till then, please subscribe and like this video for more such videos, and I hope to see you in the next one. Thank you so much.